Okay, Satyam. Yes, sir. The first question for you is that you have to tell all your educational experiences till now. So, as I'm graduated from Delhi University, GJ St. Mary College, I have a lot of in my as my graduation period. I have studied six subjects, in which most of the subjects are from which was based on Spanish language. So, sir, I have a very great interest in Spanish. So, I have worked with a lot of ambassadors in Spanish culture, like from Peru to Ecuador. So, sir, I believe that after completed my graduation in Spanish as well as in history, I have gained a lot of experience in communication as well as I have a great interest in linguistic force of development in India. As our former, as not former, but sir, as our present Foreign Minister S. J. Shankar has mentioned that in our culture, in our India, we have a very low rate of people who are learning international languages like French, Spanish, which is really disappointing. So for that purpose, I really want a great dedication for each and every individual to have a basic basic knowledge of one at least one international Okay, language. जैसे this was not needed. This you don't have to pitch your ambition in it. है ना? Yes, sir. I Yes, just sir. asked you what kind of educational experiences that you've had till now. और दूसरा Yes, एक sir. पॉइंट है कि एजुकेशन आपके सिर्फ ग्रेजुएशन से स्टार्ट नहीं होता. Okay, sir. It starts from your school, even before school. So if you could have summarize all those experiences that I studied in this school, and you Okay. can also criticize some of the things that happened in your education that you could have, or government could have different kind of system. है ना? अगर तुम्हें वो भी क्रिटिक करना है तो तुम कर सकते हो. Because you as an individual, how did you experience this journey of learning till now? Okay, sir. ठीक है, तो ये इस पे बात करनी है. थोड़ा क्वेश्चन पे और थोड़ा फोकस किया करो, ठीक है. Okay, sir. और दूसरा कि जैसे तुमने आईआईटी गांधीनगर में तुमने इनरोल किया है, यू हैव गिवन अ रिसर्च प्रपोजल, यू हैव अ एसओपी देयर आल्सो. सो एडिंग दिस थिंग कि आई वुड लाइक टू अलाइन माई सेल्फ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ श्री जयशंकर, है ना? Hmm. नॉट अ वेरी ग्रेट आइडिया हियर, ठीक है. Hmm. तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट आईआईटी गांधीनगर दिस प्रोग्राम, and what made you to apply this? So firstly, I came to know about IIT Gandhinagar through Google, through sources, internet sources. Secondly, sir, my vision to see myself in IIT Gandhinagar is because I wanted to work for the society through sorry, sir, I wanted to have a knowledge of society from multiple angles. So for that purpose, IIT, which is based for everything, for which is a very diverse community. For that purpose, I believe IIT Gandhinagar is best suited for my subject. And this was not concrete, and both the answer were very vague. जैसे पहला क्या था कि I asked you, how did you find about this particular course? तो Google never gives you any particular course, है ना? आप ऐसा हो सकता है कि you are stumbling upon different humanities courses in IITs of India, तो वहाँ मिला आपको. और since you are interested in humanities and social sciences and everything, so someday Google, not some social media organization or some blogs all of a sudden appeared, or YouTube videos appeared to you, है ना, because of your choice of videos, and then you saw it. तो इस तरह का कुछ बताना है. Okay, sir. गूगल नेवर टेल यू, है ना, एनीथिंग. वो गूगल तो सेल्फ पिच भी नहीं करते ना, तो साइट्स वगैरह तो खुद नहीं बताते हैं, आपको सर्च करना होता है, ठीक है. बट यूट्यूब करता है, इंस्टाग्राम करता है आपको, है ना. और सेकंड पार्ट ये था कि व्हाई डिड यू मतलब अप्लाई, और व्हाट मेड यू टू अप्लाई. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, ऑल दोज रीजन दैट यू टोल्ड, दिस कैन बी ट्रू फॉर many other courses of India also. Yeah. But IIT गांधीनगर एमए सोसाइटी एंड कल्चर इज वेरी यूनिक इन इट्स टर्म. तो तुम्हें कल तो बताया ही था कि वो हाउ
this course stands apart because it's not a disciplinary, it is interdisciplinary nature, but again it gives you a scope to build your discipline, build your expertise, है ना? तो Yes, sir. in that way you could have told something, Okay, sir. क्योंकि इनपुट तो मैंने कल दिया ही था, है ना? Sir, और but बाकी what I see, sorry, sir, interrupt you, but what I see that working in an IIT as compared to any Delhi University college, हाँ, I feel that you can get a multiple angles through through technology, through if I'm learning there, I'll get a political science, governance नहीं देखो, knowledge. दैट्स अ मतलब योर एजेंडा टू सी द कॉलेज एज पर इट इज, कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है तो बट उस कोर्स में कितनी टेक्नोलॉजी की इनपुट है, ये तो आप देख रहे हो ना, मतलब वहां पे ऐसा कोई टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है। No, sir. तो But sir, to answer this question, sir, we had this like our in this era in which we are living now, our whole thing is related to all the technologies. Like sir, हमारा जो MUN sorry Me Too case भी हुआ था, that happened through a very in through very I can say socially like social techno driven. So sir, how मैं can we not relate it? मैं समझ गया, बट पॉइंट मेरा ये है कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का कोर्स है, बट दे आर नॉट गिविंग यू एनी curriculum based exposure of technology. Yes, sir. That's the environment which you want to use, ठीक है, Yes, sir. for aligning your projects or learning through technology or to technology also. मेरा Yes. पॉइंट यहाँ पे है कि दिस इज नॉट जस्ट वन रीजन, है ना? ऐसे तो आईटी गुवाहाटी में भी है कोर्स, है ना? और Yes, sir. इवन कोई दिल्ली की बात तुमने की या टेस्ट की बात की, तो जो सर्टेन टेक्नोलॉजी विच इज नीडेड फॉर दिस कोर्स विच इज बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Now there are n number of things which is happening every in every college. Every course is now launching data science courses or information science courses, so that you should not miss the recent need of information technology. तो वो ठीक है कि टेक्नोलॉजी आईआईटी है तो यू विल बी हैविंग एक्सपोजर बिकॉज ऑफ द क्राउड, डिपार्टमेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, है ना? एंड विच विल बी विच विथ विच यू विल बी एबल टू रिलेट टेक्नोलॉजी टू सोसाइटी. दैट्स फाइन. बट तुमको अभी इसमें अपने एजेंडा के बारे में बताना है, ठीक है? क्योंकि आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, आफ्टर फिलिंग द एसओपी, इफ यू आर स्टिल नॉट अलाइंड विद द करिकुलम, स्टिल नॉट, क्योंकि जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था ऐसे ही मजाक बात में कि व्हाट आर यू थिंकिंग विद दिस Hmm. कॉलेज कोर्स एंड, तो उसी क्वेश्चन का समझो कि एक दूसरे तरीके से पूछने का तरीका है. Hmm. Okay, sir. Got it. वो समझ रहे हो ना कि मतलब अंडरनीथ वही है. इट्स नॉट कि अगर Hmm. मेरे वर्ड्स अलग हैं तो उसके आंसर भी अलग होंगे, है ना? तो उसको तुम्हें Yes, sir. समझना पड़ेगा कि व्हाई डू, व्हाट मेड यू टू अप्लाई दिस. यू हैव टू टेल योर 2 year एजेंडा एंड पोस्ट 2 year एजेंडा की, है ना? एंड यू हैव टू टेल दैट योर करंट बैकग्राउंड हाउ इट्स मैच विद द कोर्स. Yes, sir. ये भी बताना होगा, क्योंकि केवल कोर्स की तारीफ करोगे तब भी होगा कि कोर्स तो ठीक है, हाउ यू Hmm. योर सेल्फ फिट फॉर द कोर्स, ठीक है? Okay, sir. इस पे नेक्स्ट प्रिपेयर करना. अच्छा, हमारा पहला Okay. इंटरव्यू जनरली ऐसे ही होता है, कंटिन्यूअस रिव्यूड. हम किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी बच्चे के लिए फर्स्ट इंटरव्यू इस तरह का ही रखते हैं, वेयर आई फ्रिक्वेंटली इंटरवीन विथ एवरी आंसर दैट यू टेल, है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. That much needed, sir. हाँ, नहीं वो हमें पता है, तभी तो हम ऐसा करते हैं. तो एक नेक्स्ट क्या है तुम्हारे लिए क्वेश्चन कि व्हाट रिसर्च हैव यू डन टिल नाउ, मतलब हैव यू डन एनी एकेडमिक रिसर्च? Yes, sir. I have done one work with my professor that was based on research only. That was Second Spanish Republic for the Spain. Okay, so tell me about that research. What was So there? that was basically based for the history of the Second Republic that happened in Spain for the revolution. That was basically for the revolution pattern, and I worked with him to get the material from the archive, no archive thing of Spain. So yes, sir. Through that, I have experienced how to get the material
and how to analyze things which are ये raised भी for एक the. बहुत बहुत फ्रीक्वेंट तरीका है लोगों का बोलने का ना, कि दे डोंट टेल व्हाट दे डिड। आपको ये नहीं बताना कि आपने उससे क्या सीखा। Okay. समझ रहे हो ना, बिकॉज आप रिसर्च या जो हाउ टू तुमने बोला भी ना, इट वाज नॉट वेरी इजी टू लर्न फ्रॉम वन प्रोजेक्ट और वन रिसर्च Yes, sir. विच यू आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ योर प्रोफेसर। इधर आप बताओ उसमें काम क्या किया, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था। आप Sir, एक्सप्लोर कर रहे थे केवल, कि कुछ सर्टेन डायरेक्शन में आपका एक एक्सप्लोरेशन था कि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना। जैसे एक तरीका होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा आई कंपाइल इट एंड शो एज अ रिसर्च। एक होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे मान लो कि अ, जैसे इफ somebody इज डूइंग रिसर्च कि जो महाजनपद थे इंडिया में, yes, sir. Yes, sir. है ना, वो उस पे कोई रिसर्च करना चाहता है, तो somebody कैन डू की पूरी हिस्ट्री जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको वो निकाल के एक जगह कंपाइल करके दे कैन पब्लिश देयर रिपोर्ट कि ये है सारे जनपद का। Yes, एक sir. एक पर्सन ऐसे कर सकता है थोड़े अलाइनमेंट के साथ, कि वो जानना चाहता है कि उस डेमोक्रेसी में पुलिस और आर्मी का रोल था कि नहीं। Yes, sir. तो वही स्टडी करेगा, बट दिस अलाइनमेंट से विल ट्राई टू फाइंड आउट ऑल दोज टेक्स्ट जो उस समय का है, कि कहीं पे भी पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का, आर्मी का, या कोई वॉर का, या फिर क्रिमिनल उसका कोई जिक्र है कि नहीं। तो उससे वो रेफरेंस निकाल के ही विल ट्राई टू कम अप विद एन आइडिया कि इतना तो जरूर होता होगा कि पुलिस होगी या फिर आर्मी रहा होगा, है ना, सर्टेन काइंड ऑफ। Yes, sir. तो आपका अगर रिसर्च इस तरह से अलाइंड है तो वो बताओ, है ना, थ्रू टू फाइंड आउट दैट यू वेंट टू आर्काइवल, और ये कुछ मतलब हालांकि सब याद नहीं रहता है लोगों को, बट यू ड्रू ऑल द रिसर्च पेपर्स ऑफ दोज एरा एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि है कि नहीं कहीं मेंशन्ड, है ना। Hmm. तो Okay, sir. ऐसा ये नहीं बताना चाहिए हमेशा, और एवरी टाइम यू डोंट हैव टू टेल कि मैंने इससे ये सीखा। Okay, sir. मैंने पूछा रिसर्च किया है तो रिसर्च बताओ, हाउ डिड यू डू इट ये बताओ। Hmm. हम्म। तो चलो इस पे भी Okay, sir. प्रिपेयर करना, आई एम नॉट गिव। Okay, sir. हाँ, रिपीट चाहिए। तो फिर क्वेश्चन फॉर यू इज दैट व्हाट फ्यूचर डू यू सी फॉर योरसेल्फ। Sir, as in from this subject after completing my master's? ये तुम्हारे ऊपर है, हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। Okay, sir. So the question was, sir, how do I see myself in next year? No, future, not next year. Okay. So, sir, I see myself as a person who is working for the country and who is working for the country to make everyone, not everyone, because as a person, I cannot make everyone feel blessed or feel happy, but I can provide from my perspective what is equality, what is justice, and I can work for people if I have the power through experience. Whatever I'm gaining, I can use all of my experience. I can implement all of my experience to improve the people's life, to the people who, to the marginalized people especially, to कल भी हम इस पे बात किए थे ना, कि विजन और जो आपका गोल है दैट शुड बी लिटिल विजिबल। जो तुम yeah, बोल रही हो उसको पिक्चर नहीं कर पाऊंगा मैं, yes, sir. कि हाउ आर यू वर्किंग फॉर द कंट्री, Sir, एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर द for कंट्री। that question, I searched, I tried to answer for myself, but I didn't get the complete answer. I was about to ask you कि sir कैसे इसको आंसर में कन्वर्ट करूँ मैं? इसको तुम छोटा करो, यू कैन जस्ट मेक इट लाइक दिस कि सर मतलब राइट नाउ आई एम इन परसुएंस ऑफ स्किल्स कैपेबिलिटी, है ना, रिसर्च एबिलिटी, हायर एजुकेशन के जो भी आउटपुट है, मतलब जो हो सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट द सब्जेक्ट आउटपुट और लर्निंग आउटपुट, है ना। And then you would like to start with working with some organization which are going for or doing the work for social impact, and I'll be learning more about how the work is to be done, because हमें करना है और हमें ये नहीं पता है कैसे होता है। हम्म. मतलब इफ समथिंग वुड हैव बीन दिस इजी तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों का दिल दरिया है आजकल, मतलब नॉट आजकल, इन ऑल द टाइम देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट्स टू डू लॉट ऑफ थिंग फॉर सोसाइटी, बट क्यों नहीं? Yes, sir. क्योंकि देयर इज अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन,
है ना, रिसोर्स रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्पांस के रिस्ट्रिक्शंस हैं, गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, पूरी जो सोसाइटल व्यवस्था है वो तरह की हो ही नहीं सकती कि आप तुरंत उसमें चेंज ला दो, बैरियर टू चेंज है ना। और बैरियर टू चेंज है, फिर लोगों की रेजिस्टेंस भी है। अब जैसे तुम एक गांव में गए, वहां देखे कि वहां पे एक खाप पंचायत लगता है और लोग पीपल आर किलिंग, है ना, न्यूली वेड्स हम्म बिकॉज दे आर नॉट विद। अब तुम वहां पे कुछ समझाने भी जाओगे तो लोग नहीं समझेंगे। हम्म या फिर तुम कल बात कर रहे थे कास्टिज्म के लिए, ठीक है, हम्म इफ विल गो टू एनी साइड सच एरिया जहाँ पे कास्टिज्म का डिस्क्रिमिनेशन है, what new things you will do which have not been done yet? yes sir लॉ एंड ऑर्डर लगी गया, गवर्नमेंट की अवेयरनेस आई गई, एजुकेशन आई गई, बट स्टिल देयर। तो आपके सोचने से नहीं होगा ना। yes sir तो आपको अपना फ्यूचरिस्टिक थोड़ा बताना है कि अभी मैं 2 साल इन परस्यूट ऑफ नॉलेज कैपेबिलिटी हूँ, फिर उसके बाद आई विल बी वर्किंग विथ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज टीम बिल्ड करना है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तब जाके आपके ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव पूरे हो पाएंगे। sir, but like what kind of organization do I need to work for? तो नहीं, जैसे यू कैन ऑलवेज चूज दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग फॉर द सिमिलर गोल दैट यू हैव, विच Sir, इज I have worked with two NGO, one for the Smile Pledge and one for one day meal. So, sir, that would be वो कि kind. वो ठीक है, वो तुम कहीं बीच में जब जरूरत पड़े तो बोल सकती है, बट यहाँ Okay, sir. तुमको बोलना है कि फाइंडिंग आउट सच ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर सोशल जस्टिस, या Okay, sir. लाइवलीहुड फॉर मार्जिनल कम्युनिटी, या फिर एनीथिंग दैट यू वांट। तो वो ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करके तुम वहाँ पे यू वुड लाइक टू गेट इनटू दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क फॉर देम, सो दैट तुम्हारी कैपेबिलिटी और बढ़े, है ना, तुम्हारी Yes, अथॉरिटी और बढ़े, तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ग्रो करे, तो वो जो इम्पैक्ट धीरे धीरे बनेगा इन सम टाइम इन फ्यूचर दैट में गेट द रेडिकल ग्रोथ और रिवोल्यूशनरी ग्रोथ। आज सोचने से आज sir. तो हाँ। Yeah, yes, sir. But sir, my question is that if I want to work for the people of South Africa who have been driven by the from the coast post-colonial time, हाँ, th- there was one thing that was like for the agriculture people, they have been suffered a lot. Peasants have suffered a lot. So for sir, that purpose, there are a lot of UN agencies who are working for South African countries. Not the UN agencies, sir. Sorry to use that word, but हाँ, sir, there are agencies which are working for the South African people who have हाँ, been driven because of the agriculture driven thing. So, हाँ। sir, how to summarize? How can I add those point to to नहीं, आप इसमें अगर आप इंटरनेशनल बनना चाहते हो तो जस्ट इंडिया और कंट्री की बात ही क्यों कर रहे हो? yes, तुम sir. कई जगह कंट्री की बात कर रहे हो, अभी तुम बोल रहे हो कि आप इंटरनेशनल, तो देर आर पीपल हु वुड लाइक टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटीज। Yes, sir. दे डोंट सी कंट्री एज अ बाउंड्री फॉर ह्यूमैनिटी। Yes, sir. आप वो भी बताओ। Hmm. मैं आगे चल के आई वुड लाइक टू बी मतलब ग्लोबल पर्सन, आई वुड लाइक टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर डिफरेंट इशूज, है ना। तो उसके लिए स्टार्ट तो आपको करना पड़ेगा ना, कहीं से यू हैव टू गेट इन, है ना। Yes, sir. तो तुम ऐसा बोल सकते हो, तुमसे पूछेगा फिर अगर कि व्हाई डू थिंक दैट यू शुड गो फॉर साउथ अफ्रीका व्हेन देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम स्टिल देयर इन इंडिया टू सॉल्व। Hmm. तो तुम उस समय तुम ऐसा जवाब दोगे कि सर, इंडिपेंडेंटली आई थिंक नो कंट्री विल बी एबल टू सॉल्व जस्ट देयर इशू, है ना। Hmm. फॉर मी आई बिलीव दैट सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट कम ग्लोबली, Hmm. है ना। तो ग्लोबल जब प्रयास होगा तो इवन इंडियन थिंग्स विल आल्सो राइज बिकॉज ग्लोबलाइजेशन से डेवलपमेंट वहां से यहाँ ट्रांसफर भी हो सकता Hmm. है ना। तो And sir, उसका we can जवाब add तुम one ऐसे more दे सकते thing. हो। Yes, sir, हाँ? we can add more thing as a peacekeeping citizen, as a peacekeeping country from being authorized by UN. India has received a lot of awards, and as a citizen of India, as things are going in that way. अगर सर हम humanities की बात कर रहे हैं, तो सर peacekeeping में हमें सबसे ज्यादा awards मिले हैं. हम्म, और मतलब ऑथराइज्ड हुआ है और सर हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल भी था सर फॉर 15 years हम्म, आई गेस टू टिल 17 years आई गेस सर आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर टिल हम्म। 2030 तो सर उसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं आंसर्स में यार देखो, तुम्हारा ना एक गोल, अभी जो इंटायर आंसर का गोल है ना,
इट हैज वेरी वो, इट्स, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस प्रोफेसर दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू नो Okay. एवरीथिंग। ऐसा नहीं चाहिए। Okay, sir. बी लिटिल रॉ, बी लिटिल अ पर्सन हु वांट्स टू स्टडी। ऐसा नहीं कि तुम्हें Okay. सब पता Okay, sir. है ना। एंड यू कैन नॉट जस्ट टॉक द ग्लोबल ऑब्जेक्टिव एज योर कैरियर Hmm. ऑब्जेक्टिव। Okay, sir. आप बहुत छोटे हो ना, मतलब जस्ट वन पर्सन, यू कैन Yes, sir. अलाइन विद दैट ऑब्जेक्टिव, बट अब मार्जिनल लोगों के लिए काम करना है, तो ये तो इंडियन ऑब्जेक्टिव है, पूरे देश का ऑब्जेक्टिव यही है कि Yes, sir. रोड पे काम करना है। बट यू विल नॉट डू इट फॉर फॉर Yes, ऑल sir. ऑफ देम ना। यू हैव टू फाइंड योर एरिया, योर फोकस एरिया, है ना, कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये काम करेंगे, आई ट्राई टू, हाँ ऑफ कोर्स इन लॉन्ग टर्म यू विल बी एबल टू गेट मोर अथॉरिटी, है ना, मोर पावर, और पॉलिसी मेकिंग पोजीशन पे तुम चले जाओ। बट अभी तुम ग्लोबल एजेंडा को अपना कैरियर गोल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते सर। ओके सर। है ना, जहाँ पूरे देश मिलके नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो तुम हम्म। बैठे बैठे वो ड्रीम नहीं कर सकती ना। यस सर। हाँ। तो तो और सर हर मेरा चीज आंसर फ्रेम शुड बी विद इन इंडिया एंड इट शुड विद इन नॉट बी गो इंडिया भी ग्लोबल। नहीं, तुम बाहर भी बोल सकती हो कि आई लाइक टू वर्क फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। बाहर के लोग इंडिया आके काम करते हैं, इंडिया के लोग भी बाहर जाके काम करेंगे, वो ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, दैट्स नॉट अ ओके प्रॉब्लम। सर। बट आपको दिखना चाहिए ना कि हम ऐसे काम करेंगे। ओके I'm सर। learning this, ओके I'm सर, joining क्लियर an होना चाहिए। organization, यस I'm सर। getting job which will also give you opportunity to work for other countries। तो ऐसे बोलो ना जो दिखे हमको। ओके सर। मेरा एक फ्रेंड है, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो अभी तो इंडिया में है, ही इज वर्किंग फॉर एन ऑस्ट्रेलियन एनजीओ। लेकिन हम्म। इससे पहले वो काम करता था, तो उसने तुम जैसे बता रहे हो साफ साफ लिखा कि 2 कंट्री में वो जाके काम कर रखा है। यस सर। ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट पॉसिबल, बट यस सर। यू कैन नॉट मतलब वर्क फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट इज देयर इन इंडिया और ग्लोब। यस सर। अच्छा चलो फिर इस पे काम करो थोड़ा सा। Okay, sir. This is the main thing I wanted to ask you to how to frame my answer for the vision, which is very not so good for my own thing. हाँ, क्योंकि फिर वो मतलब इंटरव्यू में आपका कोई भी स्टेटमेंट, है ना, जैसे Yes, कि हमने ये सीखा, या यू ड्रीम बिग टू फिनिश द पॉवर्टी, ये सब काम नहीं आता। yes, sir. वरना तो कोई जाके ऐसे बोल देगा कि सर हम Sir, अगले if you can help me to send the key points, I wanted to write a very good answer on this. Sir, अगर आप मुझे key points भेज देते तो मैं एक बार मैंने अच्छे से सारा तो लिख लेती। बताया ना, वीडियो को दोबारा देखना, यू विल फाइंड दैट की पॉइंट्स, कि सब Okay, चीजें तो sir. बोल दिया मैंने, यही तो बोला कि देयर इज नो परफेक्ट फार्मूला फॉर इट। Okay, sir. यू हैव टू बिल्ड योर ओन, ये थोड़ा विजुलाइज करो व्हाट यू वांट टू, Okay, sir. है ना। Yes, sir. तो इस तरीके से थोड़ा देखना पड़ेगा। Okay, sir. अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, Yes, sir. बाकी फिर अगले इंटरव्यू में हम तुमसे पूछेंगे। Okay, sir. लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट व्हाट इफ यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड हियर। Sir, I don't think so. I have something which is not making me to select here. But if I won't, then I'll try next time, sir. अच्छा, तो इसमें तुम अभी इस साल कोई अल्टरनेट ऑप्शन अपने लिए नहीं रखे हो? No, sir. नहीं, ये गलत है, आपको रखना चाहिए। चलो ठीक है, विल टॉक टॉक टू दिस क्वेश्चन लेटर, अबाउट दिस क्वेश्चन लेटर, ठीक है। Yes, sir. But sir, I want to make an answer on that vision purpose, and I'll send you today after making that answer.